So we will start revision of AC circuits today. सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि what is AC. So in your household we receive the supply is AC. So there are two types of electricity supply. One is DC. DC is direct current supply basically, and AC is alternating current supply. तो AC और DC में difference यही है कि when you look at the graph of DC voltage against time, तो अगर आप यहाँ पे T प्लॉट करते हो, यहाँ पे वोल्टेज प्लॉट करते हो, तो फॉर DC you will have a signal which is more over non-varying. तो non-varying signal होता है बेसिकली यहाँ पे. It is constant with time. Of course, हम अगर इसको यूज करेंगे तो it will start decreasing with time, but still it will always remain positive, right? Whereas AC source में क्या होता है? In case of AC source, the signal is like this. तो इसका polarity change होता रहता है. Positive in half cycle, negative in half cycle, then positive in next half cycle, then negative in half cycle, so on and so forth. So such a supply is called as AC supply. तो सबसे पहले पता होना चाहिए there are two types of supply that you get. One is DC, another is AC. So now, in one of the previous topics, what we have seen is AC generator. अब AC signal generator जो होता है ना, you should know, AC signal generator generates AC voltage which is given by E equal to E0 sine of omega t. Okay, and how does this work? ये कहाँ से आया? हमको इसके डिटेल में नहीं जाना. We just need to know कि when you have alternating voltage, the expression for alternating voltage is given by E0 sine omega t, where E0 is amplitude. क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि ये जो है ये साइनोसॉइडल है ना, साइनोसॉइडल साइन वेव. तो इसका जो पीक वैल्यू होगा एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड, and because the signal varies as a sine wave, so you have sine of omega t. Similarly, if you talk about current, so AC current can be written as I0 sine of omega t plus or minus some phase difference. Some phase difference. अभी बुक में मैंने प्लस लिखा होगा, ठीक है, और फाई को मैंने अल्फा भी लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है. प्लस और माइनस क्यों? क्योंकि मे भी हो सकता है करंट इज लीडिंग एंड EMF is lagging. Maybe it may happen that current is lagging and EMF is leading. So you will get a signal, a waveform of current, expression for current as I0 sin omega t, either plus alpha or minus alpha. तो याद रखना, जब जब करंट और वोल्टेज के इक्वेशन में साइन या कोसाइन आए, that means you have alternating AC supply. तो ये बताना चाहिए एट द फर्स्ट प्लेस. गुड. देन क्योंकि ये AC है, अब मैं एक काम करूंगा, मैं AC सिग्नल का एक ग्राफ ड्रॉ करके रख देता हूं सो दैट इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. और ये प्रोड्यूस कैसे करते हैं वो बता देता हूं. तो नॉर्मली क्या होता है, अगर आप DC की बात कर रहे हो, DC में आपके पास एक पॉजिटिव प्लेट है, एक नेगेटिव प्लेट है, और विथ टाइम इट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव एंड द नेगेटिव ऑलवेज रिमेन्स नेगेटिव. बट इन AC you change the polarity. प्लस को माइनस करोगे, माइनस को प्लस करोगे, फिर चलता रहेगा. तो you will keep on changing the polarity, right? तो plates continuously are changing polarity. इसको हम बोलते हैं alternating supply, because alternatively plus is becoming minus and minus is becoming plus. तो ये DC का सर्किट सिंबल है. This is for DC. For AC you use this. This is for AC supply, right? तो अब when you talk about AC signals, you may have such a signal. देखो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं सेल लेके आया, तो I also have some cell in this remote control. I have another devices here जिसमें भी सेल है. These cells that you buy for 10, 20 rupees, 30 rupees maybe, these are source of DC. तो अगर मुझे कंपेयर करना है तो जरूरत ठीक है, इसके ऊपर लिखा होता है कि ये 10 वोल्ट है, वो 15 वोल्ट है, तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो. वो पता है कि वन इज 15 वोल्ट, अनदर इज
10 वोल्ट। लेकिन एसी के केस में प्रॉब्लम क्या है ना, एसी के केस में फ्लक्चुएटिंग है, सिग्नल इज नॉट रियली कांस्टेंट, और ऊपर से कांस्टेंट तो नहीं है, दैट इज वन थिंग, बट इट इज गोइंग थ्रू पॉजिटिव वैल्यूज एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज। तो अगर मेरे पास दो सिग्नल्स है, मान लो इफ आई हैव टू सिग्नल्स एंड आई वांट टू कंपेयर दीज टू सिग्नल्स, तो फिर कंपैरिजन के लिए कौन सा पैरामीटर हम यूज करेंगे? तो टू कंपेयर टू सिग्नल्स वी यूज मीन वैल्यूज और आरएमएस वैल्यूज। तो मीन या फिर एवरेज वैल्यू क्या होता है पहले वो देख लेते हैं हम, मीन और एवरेज वैल्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि मीन या एवरेज, दिस वैल्यूज वी यूज टू कंपेयर टू डिफरेंट सिग्नल्स, चाहे वो वोल्टेज सिग्नल हो, मतलब ईएमएफ सिग्नल हो, या फिर वो करंट सिग्नल हो। तो अगर ऑल्टरनेटिंग आपके पास वोल्टेज या करंट है और दो अलग अलग आपके पास सिग्नल्स है, तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें कोई एक पैरामीटर चाहिए, दैट इज नथिंग बट मीन और एवरेज। अब एक प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि साइन वेव है और आप देख रहे हो इस सिग्नल में वैल्यूज आर गोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, then back to 0, then negative maximum, then 0 again। तो पूरा अगर मैं एक कंप्लीट साइकिल पे फोकस करता हूं, इफ आई फोकस ऑन वन साइकिल ओवर हियर, तो वन साइकिल में एवरेज तो डेफिनेटली 0 होने वाला है। क्यों? क्योंकि हाफ साइकिल में पॉजिटिव था और हाफ साइकिल में नेगेटिव है, तो एवरेज विल बी 0। तो दैट इज व्हाई हम लोग एवरेज वैल्यूज डिफाइन करने के लिए वी कैन नॉट यूज वन कंप्लीट साइकिल, you have to average on half cycle। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये है 0, ये है टाइम पीरियड t, दिस इज t by 2 ना, हाफ द टाइम पीरियड, ठीक है, दिस इज हाफ द टाइम पीरियड। और इन टर्म्स ऑफ अगर ओमेगा टी बात करोगे, ये बेसिकली पता होना चाहिए। यहाँ पे आप ईएमएफ प्लॉट कर रहे हो, यहाँ पे या तो आप टाइम प्लॉट कर रहे हो या तो फिर ओमेगा इंटू टी प्लॉट कर रहे हो, विच इज फेज ऑफ वेव ओमेगा टी। और अगर आपको टाइम में समझ आता तो टाइम में करो, नहीं तो ओमेगा टी तो इजी है ना, ओमेगा टी व्हाट इज ओमेगा 2 पाई बाय टाइम पीरियड, व्हाट इज टी हियर, टी बाय 2, कैंसिल 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 कैंसिल, तो कितना आ गया पाई, तो बराबर है, ये पाई ही आता है ना, ये कितना आएगा 2 पाई, तो ये 2 पाई आएगा, ये कितना आएगा 3 पाई बाय 2, ये कितना आएगा पाई बाय 2। गुड 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 गुड। तो पॉइंट नंबर 1 इज दैट since the signal is varying alternatively between positive and negative half, so you cannot take average over one complete cycle, because average over one complete cycle will be 0। तो हमको एवरेज लेना है ओवर हाफ साइकिल। तो आप पता होना चाहिए कि एवरेज वैल्यूज लेते कैसे हैं, हाउ डू यू फाइंड आउट एवरेज। आपके पास ऑलरेडी है E इक्वल टू A0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे एवरेज लेने के लिए एवरेज का ये नोटेशन है, एवरेज ऑफ E, दिस इज नोटेशन ऑफ एवरेज ऑफ E, which is equal to E0 साइन ओमेगा टी, राइट। और ऊपर से आपको ये पता है कि ये एम्पलीट्यूड है, एंड एम्पलीट्यूड इज व्हाट E0, करेक्ट। और आपको ये भी पता है कि एम्पलीट्यूड तो होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब कांस्टेंट वैल्यू। आप कांस्टेंट का एवरेज लोगे तो वही वैल्यू आएगा। इफ आई आस्क यू व्हाट इज एवरेज ऑफ 2, जस्ट 2 इज 2, तो व्हाट इज एवरेज ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज द सेम वैल्यू। तो एवरेज ऑफ कांस्टेंट लेते ही नहीं हम लोग, तो E0 को बाहर निकाल लिया, देन यू हैव साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट। तो एवरेज ऑफ E is E0 एवरेज ओवर साइन ओमेगा टी, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। गुड, देन फाइन। नाउ आपको पता होना चाहिए कि साइन ओमेगा टी का एवरेज कैसे निकालना है। इन जनरल एवरेज कैसे फाइंड करते हो। इफ आई आस्क यू 3 नंबर्स, लेट अस से 1 2 एंड 3, हमको पता है एवरेज इज 2, सीक्वेंस लोगे तो मिडिल नंबर इज एवरेज, है ना। तो मीन पता होना चाहिए, मीन मीडियन मोड भी पता होना चाहिए आपको। तो एनीवेज 2 3 4, तो 3 फिर किया क्या, 2 + 3 + 4 / 3, राइट। तो एवरेज निकालने के लिए आप सारे के सारे क्वांटिटीज का एडिशन करते हो, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो सिमिलरली यहाँ पे आप साइन ओमेगा टी का एवरेज लेना पड़ेगा आपको,
तो साइन ओमेगा टी का एवरेज लेंगे कैसे? पहली बात तो एडिशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि इट इज अ क्वांटिटी, साइन वेव है ना, और साइन वेव इज अ कंटीन्यूअस वेरिएशन। ऐसा था क्या, एक वैल्यू थी, फिर कुछ नहीं था, फिर दूसरा वैल्यू था, फिर कुछ नहीं था, फिर तीसरा वैल्यू था, ऐसा था क्या? ऐसा होता तो फिर आप समेशन करते, एडिशन करते मतलब। लेकिन ये कंटिन्यूअस वेरिएशन है, कंटिन्यूअस वेरिएशन में समेशन इज रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। तो यू विल बी फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग डाउन इंटीग्रेशन। किस पे इंटीग्रेशन? साइन ऑफ ओमेगा टी पे, राइट? बट वेट अ मिनट, ओमेगा टी को आप थीटा भी लिख सकते हो, बिकॉज यू नो, डू यू रिमेंबर लिटिल बिट ऑफ फर्स्ट चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स? ओमेगा इज थीटा बाय टी। नहीं याद होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्टेंस अपॉन टाइम। गुड। तो यू हैव ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी, मतलब ओमेगा टी क्या आ गया? थीटा। तो व्हाट यू कैन डू इज दिस, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, यू कैन राइट अ थीटा ओवर हियर। तो थीटा लिख दिया, तो यहां पे भी ओमेगा टी की जगह क्या लिखोगे? थीटा। थीटा इंडिकेट किससे करोगे? डी थीटा से। कहां से? जीरो से कहां तक? पाई तक। 2 पाई पे मत जाना, क्योंकि हम हाफ साइकिल पे कर रहे हैं। हाफ साइकिल मतलब जीरो से पाई होता है। मीन वैल्यूज और एवरेज वैल्यूज आर ऑलवेज इंटीग्रेटेड ओवर हाफ साइकिल्स, राइट? देन एज आई टोल्ड यू, टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स, साइन थीटा इज फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 1 + 2 + 3, addition of physical quantities divided by total number. Total number of total angle. What is total angle? 0 to pi. Total angle is pi. हाँ तो डायरेक्ट पाई लिखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं लिखना तो फिर ऐसा लिखना पड़ेगा। गुड, राइट? तो यू विल हैव एवरेज ऑफ ईएमएफ इक्वल टू E0, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, और ये आ जाएगा आपका ओनली थीटा फ्रॉम 0 टू पाई। तो ये मिल जाएगा आपको E इक्वल टू E0, नेगेटिव साइन हटा दो, देन यू हैव cos थीटा फ्रॉम पाई टू 0, और ये आ जाएगा आपका पाई माइनस 0। तो यू विल हैव एवरेज ऑफ E एज E0 cos 0 1 माइनस cos ऑफ पाई माइनस, यस, माइनस, राइट, और ये आ जाएगा आपके पास पाई। So what you will get is average value of E equal to 2 by pi times of E0. What is pi? 3.14. तो 2 by pi करोगे तो it is 0.637 E0। तो ये आ गया आपका एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू इज 63.7% of peak value. Similarly, average value of current will be 0.637 times of peak current. तो अगर आपको सिग्नल्स को कंपेयर करना है तो यू कैन यूज दिस मीन वैल्यूज टू कंपेयर टू सिग्नल्स। गुड। देन नेक्स्ट पैरामीटर दैट यू कैन यूज टू कंपेयर टू सिग्नल्स इज नथिंग बट रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर मतलब आरएमएस वैल्यूज। अब ये आरएमएस होता क्या है और क्यों यूज करना है? अगेन लुक, व्हाट हैपेंस इज, नॉर्मली हम लोग वोल्टेज या फिर करंट मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? वी इधर यूज वोल्ट मीटर और वी यूज, आई मीन ऑफ कोर्स फॉर वोल्टेज यू यूज वोल्ट मीटर एंड फॉर करंट यू यूज एमीटर। बट इफ यू रिमेंबर, दिस voltmeter या फिर ammeter gives us what? Average values. They do not give us instantaneous values. और यहाँ पे देखो हर एक इंस्टेंट पे EMF चेंज हो रहा है। अगर आप एक टाइम इंस्टेंट की बात करते हो, फॉर एग्जाम्पल 0, तो EMF इज 0। अगर आप T/4 की बात कर रहे हो तो इट इज मैक्सिमम। अगर आप T/2 की बात कर रहे हो तो वापस से 0। अगर आप 3T/4 की बात कर रहे हो तो इट इज नेगेटिव मैक्सिमम। फिर वापस से T पे आए तो वापस से 0। तो यहाँ पे क्योंकि EMF ये अल्टरनेटिंग EMF है, मतलब EMF is changing at every instant of time, that means, and also of course as I told you, voltage या voltmeter will always give you average values। तो हम वो डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते because
यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग। तो अब द इशू इज कि अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज चाहिए या दो सिग्नल के इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कंपेयर करना है तो डेफिनेटली वोल्टमीटर यू कैन नॉट यूज, आउट ऑफ क्वेश्चन। फिर आपको ऐसा कोई फिजिकल पैरामीटर सोचना पड़ेगा जो टाइम के साथ चेंज नहीं हो, मतलब टाइम के साथ वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सो ऑन सो फोर्थ। तो अब एक ऐसा पैरामीटर है which is heat generated by a current. Do you remember what is the equation for heat generated by a current? I square R. Very good. I square R. अब I definitely आपको पता है, you know कि अगर EMF alternating है तो करंट भी डेफिनेटली ऑल्टरनेटिंग ही होने वाला है। लेकिन I स्क्वायर, करंट का स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, तो करंट का स्क्वायर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, राइट? तो दैट इज व्हाई हीट जनरेटेड, और रेजिस्टेंस तो वैसे भी कांस्टेंट है ना, तो दैट इज व्हाई I स्क्वायर इनटू R, दैट इज हीट जनरेटेड, इज अ क्वांटिटी व्हिच डज नॉट चेंज विद टाइम, इट डज नॉट चेंज विद द टाइप ऑफ सिग्नल आल्सो। सिग्नल मतलब डीसी है या एसी है कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट इज टू बी डन, हम क्या करते हैं, हम एक रजिस्टर लेते हैं, उसमें से एक एसी करंट पास करते हैं फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, राइट? इट विल जनरेट सम हीट। आपको पता है एसी करंट मतलब क्या होता है, चार्जेस गो फॉरवर्ड दे कम बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, तो टू डायरेक्शनल करंट है। तो यू टेक अ रेजिस्टेंस, यू पास एसी करंट थ्रू दैट रेजिस्टेंस फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, इट विल जनरेट सम अमाउंट ऑफ हीट। देन you pass a DC current through the same resistance, और वो जो DC current है it also generates same amount of heat in the same time। तो AC current और DC current दोनों के दोनों सेम हीट जनरेट कर रहे हैं फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ टाइम थ्रू द सेम रेजिस्टेंस। तो ये जो AC और DC की बात हो रही है, राइट? तो यू कैन पुट AC current in terms of DC current, और DC current पता है कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, मतलब यू कैन राइट डाउन AC current in terms of peak value of the current, और उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए आपको एग्जाम में लिखते वक्त, यू शुड एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर AC सिग्नल्स। एक, क्योंकि वोल्ट मीटर यूज करोगे कंपेयर करने के लिए, और वोल्ट मीटर क्या देगा, एवरेज वैल्यूज, बट यहाँ पे सिग्नल इज चेंजिंग विथ टाइम, इट इज अ टाइम वेरिंग सिग्नल, तो यू कैन नॉट यूज इट। अब प्रॉब्लम क्या है कि फिर कुछ तो चाहिए ना कंपेयर करने के लिए, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो। एंड अगर मेरे पास स्क्वायर टर्म आ गया I स्क्वायर R, अगर पॉजिटिव है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी स्क्वायर पॉजिटिव, तो यू कैन यूज हीट जनरेटेड बाय AC and DC current through the same resistor for the same amount of time and then relate these two quantities, और जो भी आपको इक्वेशन मिलेगा उसको आप बोलोगे दिस इज रूट मीन स्क्वायर करंट और रूट मीन स्क्वायर EMF। तो आप फाइंड कैसे करते हैं, दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो अब सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर पहले क्या बोला आपने, रूट, फिर क्या बोला आपने, मीन, और फिर स्क्वायर। तो दिस इज व्हाट यू डू, बट डिनोट करने के लिए फॉर द टाइम बीइंग आई विल बी राइटिंग डाउन ERMS, मतलब है वही, सिर्फ मैं इसको लिख रहा हूँ ERMS। मैं नोटेशंस ऑफ योर बुक आई विल बी यूजिंग, तो आई विल यूज नोटेशन ऑफ योर बुक, दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग ERMS। अब ठीक है, नोट्स में जो भी लिखा होगा आई रियली डोंट want to change the notation, तो नोटेशन में मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर किया था, और यहाँ पे मैंने किया था फॉर करंट I स्क्वायर RMS। आई नो इट इज अ लिटिल फिशी नोटेशन, स्क्वायर भी लिख रहा हूँ RMS भी लिख रहा हूँ, लेकिन आपके बुक में नोटेशन यही है, आई विल यूज द सेम, राइट? तो इट इज रूट मीन स्क्वायर। गुड। अब RMS कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पे मीन वैल्यू, इंटीग्रेशन, यस, लेकिन E
is E0 sin omega t. वैसे ही IRMS will be what? I0 से पहले तो स्क्वायर करो करंट का, I स्क्वायर किस पे इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन सा है आपका, थीटा, तो थीटा वाले लिखेंगे। अब क्योंकि स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ पे हाफ साइकिल लेने का कोई पॉइंट नहीं है। हाफ साइकिल क्यों लिया था हमने, क्योंकि तब स्क्वायर नहीं था, और स्क्वायर नहीं था तो पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ की वैल्यू कैंसल हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, नेगेटिव का भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव का भी पॉजिटिव हो गया, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फुल साइकिल पे लेंगे एवरेज 0 to 2 pi d theta. Now as you know, you already know what is I0 sin omega t plus, you are getting confused, wait a minute, प्लस या माइनस अल्फा तब लिखते हैं जब कंपेयर करते हो इसके साथ, ईएमएफ के साथ। हम यहाँ पे ईएमएफ और करंट को कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पे करंट और करंट को कंपेयर करने वाले हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे यू विल नॉट बी राइटिंग डाउन एनी फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस की कब बात होगी, जब आप कंपेयर करोगे ईएमएफ ऑफ अ सिग्नल विथ करंट ऑफ द सेम सिग्नल, करेक्ट। यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं सिंगल करंट की, तो सिंगल करंट की जब बात करोगे, ऑफ कोर्स एक करंट को दूसरे करंट से कंपेयर करना है, राइट। और वो हम मान के चल रहे हैं कि दोनों इन फेज है, सिर्फ दोनों का एम्पलीट्यूड चेंज होगा, अलग अलग होगा। तो इन फेज है तो आई डू नॉट नीड टू राइट डाउन प्लस समथिंग। गुड, देन ये तो पता होना ही चाहिए, व्हाट इज दिस, कितना 2 पाई। अब एज आई टोल्ड यू कि पीक वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, तो क्या लिखोगे I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटीग्रेशन किसका, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक। अब आपके इस लेवल पे साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन आपने सीखा नहीं, मतलब पावर नहीं चलेगा, तो फिर हमको टू द पावर 1 आना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर आपको याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होता है, तो यू विल राइट डाउन I0 स्क्वायर बाई 2 पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। गुड, then separate and solve. So you will have I0 square upon 2 pi integration 0 to 2 pi 1 by 2 d theta minus integration 0 to 2 pi क्या है, cos 2 theta by 2 d theta, right। अब ऐसा है cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा बाई 2 आएगा, फिर आप अपर लिमिट 2 पाई डालोगे, लोअर लिमिट 0 डालोगे, तो वो 0 ही होता है बाय द वे। जिनको आप नहीं पता मैं बता देता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई के बीच में, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, माइनस साइन नहीं, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, sin का इंटीग्रेशन माइनस cos होता है, cos का इंटीग्रेशन आएगा sin बाय 2 कहां से कहां तक, थीटा की जगह पे 2 पाई डालोगे कितना हो गया 4 पाई, और 0 डालोगे तो कितना हो गया साइन ऑफ 0, नीचे क्या था 2 था, व्हाट इज साइन 4 पाई 0, व्हाट इज साइन 0 0 माइनस 0 0, तो ये सब 0, इसलिए मैंने पहले बता दिया था कि ऐसा दिखा तो 0, एंड दिस इज I0 स्क्वायर अपॉन 2 पाई 1 by 2 बाहर, 1 by 2 कांस्टेंट बाहर, डी थीटा बचा, उसका इंटीग्रेशन कितना होता है 2 पाई, कैंसल एंड कैंसल, तो व्हाट डू यू हैव इज रूट मीन स्क्वायर इज व्हाट I0 स्क्वायर बाय 2, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज I0 बाय रूट 2, व्हाट इज 1 by रूट 2 0.707,
तो ये आ गया आपके पास RMS वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली यू विल गेट RMS वैल्यू ऑफ EMF। तो ऐसा आपको RMS वैल्यू ऑफ EMF भी मिल सकता है, which will be 0.707 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ EMF। गुड, क्लियर यहां तक? अब बिफोर वी गो अहेड, चैप्टर के नाम में AC सर्किट है, मतलब हमको सारे के सारे टाइप के AC सर्किट से स्टडी करना है। Then you should know AC circuits are best studied with the help of a quantity called as phasors। उसको हम बोलते हैं phasors। I call it as phase vectors। So basically these are rotating vectors। ये जो phasors है, if you remember, I told you they are rotating vectors। Why rotating vectors? Because you can rotate them। तो अगर मैं एक फिक्स डायरेक्शन ले रहा हूँ, this is some fixed direction x, मुझे अगर बताना है, if I have to give some information about EMF या करंट, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसा इसको रोटेट कर सकता हूं, और क्योंकि ये बताएगा मुझे कितना फेज एंगल, इनिशियल फेज कितना है, तो दिस टेल्स मी हाउ मच इज द इनिशियल फेज। तो आई कैन रोटेट दिस वेक्टर्स, और आई कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर्स। The magnitude of these vectors give direction of amplitude, whereas the angle gives phase। अब ऐसा है, मान लो ये EMF, मुझे बताना था कि EMF और करंट दे आर इन फेज। इन फेज मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो मैं ऐसा नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा दिखा दूंगा दोनों को इन द सेम डायरेक्शन। मतलब ये हो गया आपका करंट का पीक वैल्यू, और ये हो गया आपका करंट का फेजर। ये हो गया आपका यहां से यहां तक EMF का पीक वैल्यू, और दिस इज नथिंग बट EMF का फेजर। क्योंकि AC सर्किट्स में होगा क्या, मैं बता देता हूं आपको, पता तो अभी है ही, बिकॉज वी आर इनटू रिवीजन नाउ। अभी तक हम लोग एक रेजिस्टेंस ले रहे थे, उसमें DC करंट पास कर रहे थे, राइट? वहां पे इन फेज आउट ऑफ फेज की बातें ही नहीं थी, वहां पे था जैसे तुमने बैटरी लगाया वैसे करंट मिला। यहाँ पे इट इज पॉसिबल कि आपने बैटरी कनेक्ट करने के कुछ टाइम के बाद आपको करंट मिल रहा है, मतलब EMF इज लीडिंग एंड करंट इज लैगिंग, राइट? तो लीड लैग हो सकता है, इट्स नॉट रियली ऑलवेज कि आपको करंट और EMF बोथ यू आर गेटिंग इन फेज। जैसे बैटरी कनेक्ट किया, इंस्टेंटली करंट मिल गया, right? This is not what happens। This is not what happens। This is not how it happens। Okay? So AC circuit में you may have in phase, you may have out of phase, you may have current leading, you may have current lagging as well। तो हो सकता है, इसके लिए हमको फेजर डायग्राम चाहिए। अब इमेजिन ऐसा एक सर्किट है, हम देखेंगे जो सर्किट में करंट जो है वो लीड कर रहा है। जो लीड करता है उसको हम हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में आगे दिखाते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच लीड्स इज शोन नॉर्मली एंटी क्लॉकवाइज अहेड। अगर ऐसा सर्किट है जिसमें करंट लैग कर रहा है, तो यू विल शो इट बिहाइंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, या फिर अहेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो याद रखना, ऐसा दिखाया मतलब हु इज लीडिंग EMF, हु इज लैगिंग करंट। ऐसा दिखाया तो हु इज लीडिंग करंट, हु इज लैगिंग EMF। तो दैट इज व्हाई ये रोटेशन जो है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस रोटेशन, बिकॉज ऑफ रोटेशन दिस एंगल, एंड एंगल टेल्स अस कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी लीड है और कौन सा लैग है, एंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर टेल्स अस व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट एज वेल एज EMF। ऊपर से अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यूज निकालनी हो, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, अब देखो आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग दिस कि टॉपिक को अच्छे से समझो। क्या है वेरिंग विद टाइम है। वेरिंग विद टाइम का मतलब क्या कि हर एक टाइम इंस्टेंट तो उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। शुरुआत यहां से की थी मैंने कि 0 या फिर मैक्सिमम, फिर 0, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, फिर 0, तो इट इज वेरिंग। तो वेरिंग है तो हर एक टाइम पे वैल्यू सेम नहीं है, इट इज डिफरेंट। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, EMF का इंस्टेंटेनियस वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लेंगे, कंपोनेंट लेंगे, कंपोनेंट अलोंग y एक्सिस या फिर कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस, डिपेंडिंग ऑन
डिपेंडिंग ऑन द वेव फॉर्म, साइन वेव है कि कोसाइन वेव है, राइट? याद है क्या? फिर अगर साइन वेव हुआ तो इन y axis, if you have EMF as sine wave, so projection of this vector along y axis will give you instantaneous value of EMF. अगर आपके पास EMF कोसाइन वेव है तो प्रोजेक्शन along x axis will give you instantaneous value. So phasors are really powerful, they are very strong, क्योंकि आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन देते हैं। एक वो आपको बताते हैं कि EMF ने कितना फेज, मतलब कितना ओमेगा टी है, दिस इज ओमेगा टी। What is the phase of EMF? Number one, they can tell you who is leading, who is lagging. For example, if I show it like this, who is leading? EMF, current is lagging. ऊपर से इन दोनों में जो एंगल है, it tells you by what amount they lead or lag. So what is the phase difference between current as well as EMF? ऊपर से इसका लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड will give you what is the value of peak, right? Then additionally, projections on y-axis or x-axis depending on the waveform, you get instantaneous values as well, कि किसी टाइम इंस्टेंट पे क्या वैल्यू होगी उस EMF या करंट की, तो ये पता होना चाहिए। Once you know this, तो अब we can start with AC circuits in reality, क्योंकि this chapter is called as AC circuits. So there are 3 types of AC circuits, actually more than 3. हम स्टार्ट करेंगे सबसे फंडामेंटल से, AC connected across a resistor, connected across a resistor. ओके, तो AC अक्रॉस अ रजिस्टर मतलब व्हाट यू हैव इज, हमारे पास एक रजिस्टर है, एक सर्किट है, मतलब वी हैव अ लूप एंड देन वी कनेक्ट अ सोर्स ऑफ AC. राइट, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कनेक्ट अ रजिस्टर एंड देन यू कैन कनेक्ट अ सोर्स ऑफ AC हियर. मैंने आपको बताया था ट्रिक टू रिमेम्बर, मैंने आपको बताया था कि जब आप रजिस्टर की बात कर रहे हो और यहाँ पे आपने AC लगाया है, तो यू ऑलवेज स्टार्ट विद अज्यूमिंग वेव फॉर्म ऑफ EMF. कंसीडर a source of alternating EMF E equal to E0 sin omega t is connected across a pure resistor, right? Then this drives a current through the circuit which is given by I. Then according to Ohm's law, E equal to IR. From equation number 1 and 2, from 1 and 2, E equal to IR and E equal to E0 sin omega t, ऐसा भी कर सकते हो। It's the same thing, मैंने बुक में थोड़ा अलग लिखा था, तो क्या फर्क पड़ता है, doesn't matter। मैंने शायद ऐसा लिखा था, मुझे याद आ रहा है जहां तक, राइट? वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज E0 sin ओमेगा t बाय R। फिर हमने बोला था कि अगर हमको करंट का पीक वैल्यू चाहिए तो sin ओमेगा t की वैल्यू 1 होनी चाहिए। सो फॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट, peak value of current, sin of omega t should be equal to 1. Therefore, what you will have is I0, इसको हम पीक को डिनोट करते हैं I0 से या फिर I max से, it will be equal to sin omega t क्या हो गया 1, तो क्या बचा A0 by R. गुड, तो ये आ गया आपके पास पीक वैल्यू A0 by R। तो अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 से आपको मिलेगा, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you will get I equal to A0 by R is I0 sin omega t, equation number 4, right? So comparing equation number 1 and equation number 4, what do we see is that दोनों साइन वेव है, both are sine waves, तो इसका मतलब there is no lead no lag, so both current as well as EMF are sine waves, so there is no lead and no lag, मतलब current and EMF are in phase,
अगर इन फेज है तो इसका जो वेव फॉर्म है हम ऐसा दिखा सकते हैं, वी कैन शो t here and we will show, of course, this is EMF. Then you can show this is current. अब करंट का एम्पलीट्यूड just a minute, I want it to be little proper, so ठीक है, just a minute, this is some memo line, reference line, I mean reference. तो EMF कैसा था, because it's important for us to compare. ओके, ये था आपके पास EMF. Similarly, you have current. Good. तो as you can see कि दोनों के दोनों कौन से वेव है, साइन वेव है, तो साइन वेव है, लेकिन पीक वैल्यू ऑफ EMF is greater than peak value of current. ऐसा क्यों? ऐसा इसके लिए क्योंकि I0 is E0 divided by something, a number R. मल्टीप्लाइड होता तो फिर ज्यादा होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है, that is why. Good. What do you notice? You see that zero value, मतलब minimum value of current as well as EMF occur at the same time. Peak value of current as well as EMF occur at the same time. Negative maximum also occur at the same time. Hence these two are in phase. अगर आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है तो yes, you can do that. अब ऐसा कर सकते हो. There are two ways of drawing phasor diagrams. This is time axis. एक तो आप ये EMF बताओ, EMF, ये आ गया EMF और ये आ गया आपका करंट. तो एज यू कैन सी कि बोथ करंट एज वेल एज EMF आर इन सेम डायरेक्शन, राइट. तो ऐसा दिखा सकते हो, एंड डेफिनेटली दिस एंगल ओवर हियर इज ओमेगा टी, या फिर otherwise what you can do is you can also do it like this. चलेगा. तो it's not really necessary कि आपको इसको inclined दिखाना है at some angle omega t. Important is दोनों in phase है. That's it. That is the important thing here. Good. ये आ गया फेजर डायग्राम. अब दूसरा है, क्या लिया था हमने दूसरा, इंडक्टर. तो इंडक्टर AC कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर, AC कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर. गुड. अब इसमें सबसे पहले तो बताना चाहिए व्हाट इज इंडक्टर. इंडक्टर जस्ट अ कॉइल. अभी कल ही तो रिवीजन लिया हमने. वी जस्ट फिनिश दिस यस्टरडे ओनली, वेयर आई टोल्ड यू इंडक्टर इज नथिंग बट जस्ट अ कॉइल. एक कॉइल है हमारे पास, और मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था. आई टोल्ड यू हाउ टू रिमेम्बर. आई टोल्ड यू कि जब रजिस्टर कनेक्ट करोगे तो आप EMF का वेवफॉर्म अज्यूम करोगे, करंट का डिराइव करोगे, और जब आप इंडक्टर लगाओगे तो आप करंट का वेवफॉर्म अज्यूम करोगे, EMF का डिराइव करोगे. तो यू विल से कंसीडर एन इंडक्टर कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ करंट व्हिच इज I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t. इक्वेशन नंबर 1. गुड. क्लियर यहां तक. अब एज आई टोल्ड यू कि इसके आगे you have to go back into electromagnetic induction, because यहाँ पे ये एक सोर्स है. जैसे ही करंट सर्कुलेट होगा, और ये ऑल्टरनेटिंग करंट है. ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब हाफ साइकिल में पॉजिटिव, हाफ साइकिल में नेगेटिव, मतलब करंट इज बायडायरेक्शनल.
तो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। इसका मतलब करंट का डायरेक्शन चेंज होगा तो करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होता है। और इसका फ्लक्स, किसका फ्लक्स, इस इंडक्टर कॉइल का फ्लक्स खुद के साथ भी लिंक्ड है। तो फ्लक्स चेंज हुआ तो खुद के साथ लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज हुआ, मतलब EMF विल बी इंड्यूस्ड because whenever there is change in flux linked with the coil there is induced EMF, और उसको हम बोलेंगे बैक EMF, बैक। क्यों? क्योंकि ये ओरिजिनल EMF के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। लेंज लॉ याद करो, माइनस लिखते थे, वेरी गुड। तो इसका मतलब वहां पे एक ई बैक भी है, और वो ई बैक अगर आपको याद होगा तो वो था -L di/dt, राइट? रिमेंबर दिस, पक्का? गुड। देन you should remember Kirchhoff's voltage law, KVL। तो यहाँ पे इस सर्किट में एक हो गया E, एक हो गया E back, मतलब दो सोर्स ऑफ EMF है। If you remember Kirchhoff's voltage law, summation of all the EMFs plus potential drop is 0, but potential drop तो है ही नहीं, रेजिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, तो summation is 0, मतलब E plus E back is 0, मतलब E minus L di/dt is 0, मतलब E equal to L di/dt। What is I? I0 sin omega t. Therefore, you can write down E equal to L d/dt of I, which is I0 sin omega t. Therefore, you will have E equal to L, I0 being constant, sin का derivative is cos omega t into omega t का derivative is omega। फिर आप बोलते हो कि अगर cos omega t की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो EMF की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ EMF। So if cos of omega t is equal to 1, then E equal to E max is equal to E0। Therefore, you will have E equal to E0 equal to, क्योंकि ओमेगा टी cos omega t को 1 कर दिया, ओमेगा L I0, इक्वेशन नंबर 2। वेरी गुड, राइट, ये मिल गया। तो therefore ये इक्वेशन नंबर 3 बोल देता हूं, इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 2 में। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, substitute this here, you will get E equal to E0, क्योंकि L omega I0 is E0 cos of omega t, equation number 4। Comparing equation number 1 and 4, we see that EMF is cosine wave and current is sine wave। Cosine always leads. What is cos 0? Cos 0 1 and sin 0 0। तो जब cos की वैल्यू 1 थी, sin की वैल्यू 0 थी, मतलब लीड कर रहा है ना कोसाइन, तो कोसाइन किस में है, तो कौन लीड करेगा, EMF। Hence EMF leads and current lags। EMF leads and current lags। तो इसको अगर फेजर डायग्राम से दिखाना होगा तो दो तरीके हैं, एक तो ये एक्सिस ले लो, फिक्स कर लो, कौन लीड कर रहा है, EMF लीड कर रहा है, तो EMF को हम दिखाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में आगे। ये आ गया आपका EMF। कौन लैग कर रहा है, करंट, तो करंट को दिखाएंगे यहाँ पे और 90 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि साइन और कोसाइन में कितना फेज डिफरेंस होता है, 90। तो दिस इज वन वे ऑफ शोइंग इट, और अल्टरनेट वे इज आल्सो देयर। अल्टरनेट वे इज कि करंट को फिक्स कर दो हमेशा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, ऑलवेज फिक्स इट अप एंड देन डू नॉट डिस्टर्ब, राइट? फिक्स कर दिया ना, इसको इधर रखना। अब इसको इधर रखोगे तो या तो EMF यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ दिखाया मतलब ये क्लॉकवाइज में, मतलब लैग है, तो और यहाँ दिखाया तो ये है लीड।
तो हो गया यहाँ पे ईएमएफ लीड। तो आई प्रिफर दिस वे, दिस इज बेटर देन दैट वन ऑलवेज, ऑफ कोर्स, राइट। देन बाकी आप देख ही सकते हो बुक्स में, नो प्रॉब्लम। देन हमको प्लॉटिंग भी तो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कौन सा साइन वेव कौन सा कोसाइन वेव, तो वो भी दिखा सकते हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज दिस, you can take either time or phase. Along x-axis, EMF is a sine wave. EMF is a sine wave, right? But current is cosine wave, right? Oh yes, good. तो ये याद रखो, भूल के चलेगा नहीं. If you forget, then gone. तो who is cosine wave? EMF is cosine wave. ऐसा है आपका EMF. Who is sine wave? Current. Current is sine wave, और करंट का तो पीक वैसे भी, करंट का पीक वैसे भी कम होता है कंपेयर टू EMF. ये आ गया E0, सॉरी I0, और ये है आपके पास E0. वो एंगल्स आप मार्क कर दोगे, पता तो है वैसे भी होना चाहिए. 0 है, π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 2π है, so on so forth. Then one important thing is this equation number 3. You can do what? You can write E0 by I0 equal to omega L. E0 by I0. Then you can do what? By √2 by √2. लेकिन by √2 मतलब क्या है? ये RMS वैल्यूज है, मतलब E RMS upon I RMS is omega L. But wait a minute, E RMS by I RMS is something like resistance. लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस तो था नहीं, तो इंडक्टर ने AC करंट को रेजिस्टेंस ऑफर किया, and that is called as inductive reactance. It is like resistance, but it is not resistance because there is no resistor in the circuit. But then you have a quantity omega L which is like E by I, but E by I is like resistance. Hence, this quantity omega L which offers what? Resistance. किसको? To AC current is called as inductive reactance denoted by X suffix L. तो ये आ गया आपके पास inductive reactance XL which is omega L. क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट पार्ट इज, रजिस्टर हो गया, इंडक्टर भी हो गया, क्या बचा? कैपेसिटर. AC connected across capacitor. AC connected across capacitor. Across capacitor. तो बाकी सब तो सेम है, मोर और लेस सेम है. सिर्फ चेंज कहाँ है? चेंज यहाँ है, यहाँ पे EMF का सोर्स है, यहाँ पे आपके पास कैपेसिटर है, राइट. तो यू हैव सोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF. तो यहाँ पे वापस से किसका वेवफॉर्म अज्यूम करोगे? EMF का अज्यूम करेंगे. तो याद कैसे रखते हैं? याद रखते हैं EMF करंट EMF मतलब E equal to E0 sin omega t, I equal to I0 sin omega t, E equal to E0 sin omega t. Then resistance, inductor, capacitance, right? तो यहाँ पे यू स्टार्ट बाय सेइंग कि ये जो है ना, ये है E equal to E0 sin omega t. इन शॉर्ट, पहले सर्किट में टेक सोर्स ऑफ EMF, दूसरे सर्किट में टेक सोर्स ऑफ करंट, तीसरे सर्किट में टेक सोर्स ऑफ EMF अगेन. आप उल्टा भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ डेरिवेटिव्स, यहाँ पे डेरिवेटिव लिया था हमने, डेरिवेटिव है ना, तो फिर वहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. दैट विल बी द ओनली चेंज. भूल गया? नहीं, मुझे याद ही नहीं आ रहा है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई की जगह पे E इक्वल टू 0 साइन ओमेगा टी ले लो, डजंट मैटर, सिर्फ इसके आगे चेंज होगा, क्योंकि आई का वेव फॉर्म पता था तो आई सब्स्टिट्यूट करके E मिल गया। लेकिन उल्टा, अगर आई नहीं पता, E पता है, तो dt को यहां ले जाएंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इन दिस केस आपको पता होना चाहिए potential difference between the plates of capacitor is charge upon capacity of the capacitor। बताइए पक्का, इज दिस करेक्ट? सोच लो एक बार, करेक्ट है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल इज कैपेसिटर, यस, तो पोटेंशियल इज चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, वेरी गुड, तो दिस इज करेक्ट। देन लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? ईएमएफ की, तो वोल्टेज की जगह पे क्या लिखोगे? ईएमएफ लिखोगे, सिंपल। देन हमारे पास क्या है? ईएमएफ। हमें क्या चाहिए? करंट चाहिए, करंट चाहिए। करंट का इक्वेशन क्या होता है? dq by dt, but what is q from here? C into E, but q from here is C into E, so you will have d dt of C into E, और C is constant, वो तो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर है, वो तो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स पे और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स पे। अगर याद होगा आपको A इप्सिलॉन 0 by d, राइट? वो चेंज किया कि हमने नहीं किया, तो वो तो वैसा है वैसा ही रहेगा, dE by dt। But what is E? What is E? E0 sin ओमेगा t, तो आएगा C E0 sin ओमेगा t में से आपको जरूर cos ओमेगा t इंटू ओमेगा। फिर आप बोलोगे ओ यहाँ पे cos आ गया, करंट की पीक वैल्यू चाहिए तो cos की वैल्यू भी चाहिए 1, आपको मिलेगा पीक वैल्यू ऑफ करंट, that is equal to what? That is equal to C E0 ओमेगा। therefore I equal to, ये आपका बन गया पीक वैल्यू, मतलब क्या? I0 cos ऑफ ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2। फिर आप बोलोगे फ्रॉम 1 and 2, अरे करंट में आ गया cos, मतलब कौन लीड कर रहा है? ऑफ कोर्स करंट। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं वक्त करंट को दिखाओगे एंटी में आगे, इसको दिखाओगे क्लॉक में आगे, मतलब एंटी में पीछे, तो ये आ गया आपका E और दिस इज I, और फेज डिफरेंस कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि एक साइन है एक कोसाइन है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, व्हाट एल्स यू कैन डू इज दिस, यू कैन ऑल्सो शो इट लाइक दिस, एक ऐसा दिखा दिया और इसको दिखा दिया यहाँ पे, फाइन। लेकिन रिमेंबर ऑलवेज मैं ईएमएफ के वेक्टर को बड़ा ही दिखाता हूं हमेशा, क्योंकि ईएमएफ इज एक्चुअली ऑलवेज ग्रेटर देन करंट व्हेन पीक वैल्यूज आर कंपेयर्ड। देन ये हो गया। अब लुकिंग एट दिस इक्वेशन I0 इक्वल टू C E0 ओमेगा, तो मैं इसमें से ऐसा लिख सकता था, हम लिख सकते थे E0 बाय I0 इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, मतलब बाय रूट 2 और बाय रूट 2 कर सकते हैं, लेकिन बाय रूट 2 मतलब RMS, तो E RMS अपॉन I RMS इज 1 अपॉन ओमेगा C। ये क्वांटिटी दिखता है रेजिस्टेंस जैसे, होता नहीं रेजिस्टेंस, बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन सर्किट, हेंस दिस इज रेजिस्टेंस opposition offered to AC current due to capacitor, इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिनोटेड बाय X सफिक्स C। अब चाहे वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो चाहे वो इंडक्टिव रिएक्टेंस हो, both of them has the same dimensions of resistance और यूनिट्स आर ओहम, दोनों का यूनिट क्या है? ओहम। अगर आपको if you want to draw सिग्नल्स मतलब आपको अगर साइन कोसाइन वेव दिखाना है, तो अब इस केस में हु इज लीडिंग? करंट इज लीडिंग
मतलब करंट इज कोसाइन, एंड ईएमएफ इज साइन. तो ईएमएफ इज साइन, समथिंग लाइक दैट, एंड देन यू हैव अ कोसाइन ओवर हियर. ऐसा आपके पास मोर और लेस ऐसा है, समथिंग लाइक दैट. तो ये हो गया आपका I0, ये हो गया आपका E0. डन. दिस इज व्हाट यू हैव. गुड. तो अब अगला सर्किट होगा जिसमें हम तीनों ही कंपोनेंट्स साथ में लगाएंगे, फिर हम देखेंगे LC oscillations, that we will do in the next section.